Welcome, dear friends, once again. We are discussing LPG policy, liberalization, privatization, and globalization policy. And so far, I think it is the fourth video on this NEP, New Economic Policy, that is LPG policy. In the first video, we discussed about the reasons for economic reforms. Why does India started? Uh, why does India started the economic reforms? Means what were the conditions? What were the reasons? What were the circumstances in which India was forced to start the new economic policy? So in that video, first video, we come to know that the poor performance of public sector was one of the major reason for this. Not only that, it was the major reasons. So many reasons were major reasons. Deficit in balance of payment, it was the major reasons. Inflationary pressure, it was also a major reason. Fall in the foreign exchange reserves, it was a super major reasons. Huge burden of debts and inefficient management. So these were the conditions in which this economic policy India was forced to start the economic reforms. And after that, the second video, we focus on the LPG, and we also focus on the components of liberalization. And components of liberalization, we come to know that the major components of liberalizations were industrial sector reforms, financial sector reforms, tax reforms, foreign exchange reforms, trade and investment policy reforms. And next video, we made video on the industrial sector reforms and financial sector reforms. In industrial sector reforms, we come to know about the reduction in industrial licensing, decrease in the role of public sector, de-reservation under small scale industries, and monopolies and restrictive trade practices act MRTP. And further, in financial sector reforms, as you can see here, change in role of RBI, origin of private banks, increase in limit of foreign investment, and ease in expansion process. So far we have discussed up to financial sector reforms, and today we are going to focus on the tax reforms. So let us start this video line by line from Sandeep Garg book. Tax reforms. Tax reforms refers to reforms in government's taxation and public expenditure policy. जब हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की टैक्सेशन की पॉलिसी और पब्लिक एक्सपेंडिचर की पॉलिसी दोनों की बात कर रहे हैं, विच आर कलेक्टिवली नोन एज फिजिकल रिफॉर्म पॉलिसी. फिजिकल पॉलिसी किसको कहते हैं? टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर की पॉलिसी को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? फिजिकल पॉलिसी. टैक्सेस आर टू टाइप्स. कौन कौन है? डायरेक्ट टैक्स, और इसको याद रखने का तरीका मैंने बजट वाले हेल्प बैच में बताया हुआ है. डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? मारोगे तो रोऊंगा, मारोगे तो रोऊंगा, ठीक है. और मैंने इनडायरेक्ट टैक्स के लिए याद रखने के लिए बोला था, मारा किसी को रोया कोई और, मारा किसी को रोया कोई और, ये है याद रखने के लिए. मतलब क्या है? जिसके ऊपर इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट आर ऑन द सेम पर्सन, तो जिसके ऊपर लगेगा वही उसी को पे करना पड़ेगा. इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट आर ऑन डिफरेंट पर्सन, तो इंसिडेंस किसी पर, टैक्स किसी पर लगाया जाएगा एंड वो टैक्स को शिफ्ट कर सकता है. इसी को मैंने कहा मारा किसी को रोया कोई और. चलिए देखते हैं. टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस कंसिस्ट ऑफ टैक्सेस ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, इनकम ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, ठीक है, दोनों के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर भी और बिजनेस इंटरप्राइजेस के ऊपर भी. फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स. कंपनीज के ऊपर है तो कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है, और इंडिविजुअल के ऊपर तो इनकम टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्सेस रेफर्स टू दोज टैक्सेस विच अफेक्ट्स द इनकम एंड property of person, income and property of person through their consumption expenditure, बात नोट करें, थ्रू द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इनडायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जनरली, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी की बात हो गई. ये बहुत मेजर टैक्स रिफॉर्म्स था इंडिया में. द मेजर टैक्स रिफॉर्म्स मेड आर रेशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्स को रेशनलाइज किया गया, जुडिशियस बनाया गया. सिंस 1991 देयर हैज़ बीन अ कंटिन्यूअस रिडक्शन इन इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्स एज हाई टैक्स रेट्स वर एन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर टैक्स इवेजन. जो ऊंची जब टैक्स की दरें होती हैं तो उसमें टैक्स चोरी की जो
संभावना है ज़्यादा होती है। तो 1991 के ऑनवर्ड्स जो है लगातार एक प्रयास किया जाता है कंटिन्यूस रिडक्शन इन इनकम एंड कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, कंटिन्यूस रिडक्शन इन इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर लगातार कमी की जा रही थी। कमी करने का क्या कारण था? क्योंकि हाई टैक्स में टैक्स की चोरी ज़्यादा होती है। इट इज़ नाउ वाइडली एक्सेप्टेड दैट मॉडरेट रेट्स ऑफ इनकम टैक्स इनकरेजेस सेविंग। जो मतलब अगर टैक्स का रेट जो है न तो ज़्यादा हाई हो न ज़्यादा कम हो, तो उस वैसी स्थिति में मॉडरेट जो रेट होता है इनकम टैक्स का, तो वैसे जो है सेविंग को प्रमोट करता है, सेविंग अच्छी खासी होती है। एंड वॉलंटरी डिस्क्लोजर, और लोग स्वेच्छा से अपने इनकम को डिक्लेयर करते हैं कि हमारे पास इतना इनकम है, मतलब टैक्स चोरी की संभावना कम हो जाती है। हाउएवर टैक्स रिडक्शंस निगेटिवली अफेक्टेड द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन जो टैक्स रिडक्शन है निगेटिवली नकारात्मक रूप से प्रभावित किया विकासात्मक और जो भलाई की जो कार्य में सार्वजनिक हित के जो एक्सपेंडिचर है सरकार के, उसको प्रभावित किया। रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, कंसिडरेबल रिफॉर्म्स हैव बीन मेड इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। बहुत ही महत्वपूर्ण रिफॉर्म किए गए इनडायरेक्ट टैक्सेस में टू फैसिलिटेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉमन नेशनल मार्केट। कॉमन नेशनल मार्केट, पूरे भारत का मार्केट यूनिफाइड हो, उसको प्रमोट करने के लिए हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। गुड्स एंड कमोडिटीज, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेसेस इन ऑर्डर टू इनकरेज बेटर compliances on the part of the taxpayers, many procedures have been simplified। ठीक है, प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया है, ठीक है, जिससे टैक्स पे करने वालों को असुविधा का सामना न कर पाए। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट वॉज पास इन द पार्लियामेंट 29 मार्च 2017। 29 मार्च 2017 को ये पास किया गया पार्लियामेंट टू सिंप्लीफाई and introduce a unified indirect tax system, यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, ठीक है, को प्रमोट करने के लिए 2017 में इसको पास किया गया। द एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017 को ये कानून बना। जीएसटी हैज़ बीन सक्सेसफुल इन जनरेटिंग एडिशनल रेवेन्यू, सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है जीएसटी से। रिड्यूसिंग टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी कम हुई है। क्रिएटिंग वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट, ये टैगलाइन है जीएसटी का। वन नेशन, एक देश एक प्रकार का टैक्स, एंड एक बाजार, एक देश एक कर और एक बाजार। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, द इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स मेड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर। क्या क्या थे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, उसको देखेंगे हम। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज, रुपये का अवमूल्यन करना। डिवैल्यूएशन मतलब अवमूल्यन करना। डिवैल्यूएशन रेफर्स टू डिलिबरेट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विज एनी फॉरेन करेंसी बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार के द्वारा अपनी करेंसी का जानबूझकर दूसरे देशी करेंसी की तुलना में कम कर देना ही डिवैल्यूएशन कहलाता है। ये सरकार जानबूझ के करती है। टू ओवरकम बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऐसा किस लिए करती है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो क्राइसिस है उसको दूर किया जा सके। 1991 में किया गया। द रूपी वॉज डिवैल्यूड अगेन अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, दूसरे देशों की तुलना में भारत के पैसे की करेंसी की वैल्यू को कम किया गया। दिस लेड टू द एन इंक्रीज इन द इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज, और इसका परिणाम क्या हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज भारत में बहुत आया। दूसरा पॉइंट दिया जा रहा है मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। द गवर्नमेंट अलाउड रूपी वैल्यू टू बी फ्री फ्रॉम इट्स कंट्रोल, ठीक है, गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि रूपी वैल्यू टू बी फ्री फ्रॉम इट्स कंट्रोल, उसके कंट्रोल से बाहर रहे। एज ए रिजल्ट मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द इंडियन रुपी। तो अब मार्केट फोर्सेस के आधार पर भारत की करेंसी की जो कीमत है वो दूसरे देशों की तुलना में निर्धारित की जाती है मार्केट फोर्स, मतलब डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के द्वारा हम एक्सचेंज रेट को डिफाइन करते हैं, रुपए की वैल्यू को निर्धारित करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। बिफोर 1991 लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, हाई टैरिफ एंड कोटाज वर इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ और कोटा की नीतियों का बहुत ही सफलतापूर्वक पालन किया गया। हाउएवर दिस प्रोटेक्शन रिड्यूस द एफिशिएंसी, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? इफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस, क्षमता और जो प्रतियोगिता की भावना थी वो कमज़ोर हो गई, और कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड लेड टू देयर स्लो ग्रोथ। और उसका परिणाम क्या हुआ कि इनके इंडस्ट्रियल
जो ग्रोथ होना चाहिए वो स्लो ग्रोथ हुआ। सो द रिफॉर्म्स इन द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वर इंस्टीट्यूट, तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया टू इंक्रीज द इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस, इंटरनेशनल जो प्रतियोगिता है उसको बढ़ावा देने के लिए, ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी इनटू द इकोनॉमी। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि प्रमोट किस लिए, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला एंड टेक्नोलॉजी इनटू द इकोनॉमी, और भारत में की अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छी से अच्छी तकनीक का समावेश किया जा सके, उसको बुलाया आ सके। टू प्रमोट इफिशियंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज, लोकल इंडस्ट्रीज की इफिशियंसी को बढ़ावा देना एंड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया। द इम्पॉर्टेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स इंक्लूड रिमूवल ऑफ क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। द इम्पॉर्टेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स इंक्लूड क्या क्या आता है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स में। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, पहला है रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस था उसको हटाया गया। अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस on imports and exports were greatly reduced. For example, quantitative restrictions on imports of manufactured consumer goods and agricultural products were fully removed from April 2001 से पूर्णतया जो है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स को हटा दिया गया। दूसरा पॉइंट है रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज। एक्सपोर्ट ड्यूटीज वर रिमूव्ड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। भारतीय वस्तुएं विदेशी बाजार में इंटरनेशनल मार्केट में सस्ती हो जाए, इसलिए जो है एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को हटा दिया गया। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ वर रिमूव्ड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन। नेक्स्ट है रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वर कंसिडरेबली रिड्यूस्ड विच इम्प्रूव्ड द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बाय इनेबलिंग देम टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल्स एट बेटर प्राइसेस। Reduction in import duties. Import duties were considerably reduced, which improved the competitiveness of domestic industries by enabling them to import raw materials at better prices. ठीक है, रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज, इम्पोर्ट ड्यूटीज वर कंसिडरेबली रिड्यूस, इम्पोर्ट ड्यूटी को कम किया गया। विच इम्प्रूव्ड, इसका परिणाम क्या हुआ, द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी, कैसे, इनेबलिंग देम टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल्स एट बेटर प्राइसेस, जो वो बेटर कीमत पर, अच्छी कीमतों पर रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट कर सकते थे। ठीक है, इसका ये परिणाम हुआ। अगला पॉइंट है हमारा रिलैक्सेशन इन इम्पोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। द इम्पोर्ट लाइसेंसिंग वाज एबोलिश्ड, इसको हटा दिया गया। ठीक है, इम्पोर्ट लाइसेंसिंग को ख़त्म ही कर दिया गया, एक्सेप्ट इन केस ऑफ हैजार्डस एंड इन्वायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज। ऐसे ही केवल उसी में लाइसेंस की जरूरत थी जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत ही नुकसानदायक हो, सेंसिटिव हो, है ना। दिस इनकरेज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल। इसका परिणाम क्या हुआ कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है प्रमोट हुई, वो रॉ मटेरियल का इम्पोर्ट कर सकते हैं एट बेटर प्राइसेस, अच्छी कीमतों पर। जब कीमतें कम होंगी तो इफ़िशियंसी बढ़ जाती है इनकी, मेड देयर कॉम्पिटिटिव, और वो और अधिक कॉम्पिटिटिव हो गई। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक होगा प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन के बारे में देखेंगे, फिर हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमारा टॉपिक है, तो इसके बाद फिर आउटसोर्सिंग, और इस तरह के तरीके से हमारा लगभग वर्ल्ड WTO के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो प्राइवेटाइजेशन का टॉपिक है, छोटा सा है क्योंकि बुक, वैसे तो टॉपिक बहुत बड़ा है, तो इस प्राइवेटाइजेशन को भी हम इसी में देख लेते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू शेडिंग ऑफ द ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइज। जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज थे, जो सरकार के अधीन जो उद्योग थे, उनसे सरकार अपने ओनरशिप और मैनेजमेंट को किसको दे देती है, प्राइवेटाइजेशन के द्वारा उसको प्राइवेट हैंड्स में दे देती है। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेज। शेडिंग ऑफ मतलब उससे अलग हो जाना, ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं ना, उसी तरह, तो उसका कंट्रोल प्राइवेट हैंड्स में देना। प्राइवेटाइजेशन इम्प्लाइज ग्रेटर रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, ग्रेटर रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री। ओवर द ईयर्स इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डाइल्यूटेड इट्स स्टेक इन द सेवरल पब्लिक एंटरप्राइज। धीरे धीरे सरकार ने अपने हिस्सेदारी को कम किया है, डाइल्यूट किया है, इंक्लूडिंग IPCL, IBP, मारुति उद्योग लिमिटेड एक्सेट्रा, इन सब सारे में कम किया है। अब आते हैं प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन
इन टू वेज। प्राइवेटाइजेशन को करने क्या तरीके हुए, दो तरीके हैं, टू वेज। कैसे किया जाएगा, पहला है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, या तो ऑनरशिप दे दिया जाए, एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज हैं, ठीक है, उनका मैनेजमेंट करना फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाएगा। ये है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब सरकार का के अधीन जो कंपनियां थी अब वो प्राइवेट हाथों में जा रही हैं। डिस इन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी, उसके अपने हिस्सेदारी को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे परसेंटेज के रूप में प्राइवेट हैंड में देना। द प्रोसेस इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में क्या है कि सरकार अपने स्टेक को, हिस्सेदारी को क्या करती है, प्राइवेट हैंड्स में बेच देती है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं प्राइवेटाइजेशन के। पहला है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट, उसमें क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी और PSU to the public. This process is known as disinvestment. The purpose of privatization was mainly to improve financial discipline. क्या पर्पस था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, मेनली टू इम्प्रूव द, यहाँ से लिखते टू इम्प्रूव, पहला पॉइंट क्या है, टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन, दोनों बातों को, फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन एंड टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल डिसिप्लिन. It was also believed that private capital and managerial capabilities will help in improving performance of the PSU. It was also believed that private capital and managerial capabilities will help in improving performance of PSUs. For arguments in favor of privatization and argument against privatization, refer Power Booster section. Maharatnas, Navratnas and Mini Ratnas. The government also made attempts to improve the efficiency of public sector undertakings by giving them autonomy in taking managerial decisions. For instance, some PSUs have been granted special status as Navratnas and Miniratnas. यहाँ क्या कहता है कि देखिए महारत्ना, नवरत्ना और मिनिरत्ना के कॉन्सेप्ट को यहाँ बताया गया है। ठीक है, सरकार ने इम्प्रूव करने की कोशिश की पब्लिक सेक्टर को और उनको इस तरह के टैगलाइन दिया। ठीक है, फॉर इंस्टांस सम PSUs हैव बीन ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस, उनको दिया गया एज नवरत्ना एंड मिनिरत्ना। ठीक है, इन ऑर्डर टू इन्फ्यूज प्रोफेशनलिज्म एंड इनेबल PSUs टू compete more effectively in the liberalized global environment, government started granting Navratna status to PSUs. ठीक है, they were given greater managerial and operational autonomy in taking various decisions to run the company efficiently and to increase their profits. फ्रीडम दिया गया, मैनेजरियल और ऑपरेशन लेवल पर दिया गया। ठीक है, कि ऑपरेशन ले लीजिए और आप कुल मिला के ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप अपने कंपनी को घाटे मत जाने दीजिए, प्रॉफिट में रखिए, क्योंकि जो पास का PSU का एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं था। द ग्रांटिंग ऑफ नवरत्ना स्टेटस रिजल्टेड इन बेटर परफॉर्मेंस ऑफ दिस कंपनी। ठीक है, द ग्रांटिंग ऑफ नवरत्ना स्टेटस, उनको नवरत्ना स्टेटस देने के बाद उनको कुछ फैसिलिटीज़ मिल गई और उसका परिणाम क्या हुआ, उनका परफॉर्मेंस बेहतर हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस द अदर प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेज वर ग्रांटेड greater operational, financial and managerial autonomy, and they were referred as Miniratnas as in October 2024, and there are 14 Maharatnas like Indian Oil Corporation Limited, Steel Authority of India Limited SL, 24 Navratnas, the Bharat Electronics Limited, Container Corporation of India Limited, ये नवरत्ना है। 14 महारत्नाज हैं जैसे IOC है और सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और 15 मिनी रत्नाज हैं CPSE जिसको कहते हैं CPSEs। ठीक है, दैट इज कैटेगरी 1 ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। CPSEs लाइक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, और 11 मिनी रत्नाज हैं। ठीक है, CPCEs लाइक भारत पंप्स कंप्रेसर्स लिमिटेड एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड एटसेट्रा। तो ये महारत्ना, नवरत्ना और मिनिरत्ना की कहानी है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और जानकारी से भरा हुआ क्षेत्र था। तो आज हमने जिन बातों की चर्चा की, कंपोनेंट्स ऑफ लिबरलाइजेशन में हमने टैक्स रिफॉर्म्स की बात किया और उसमें हमने टैक्स के जो रिफॉर्म्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, GST के रिफॉर्म्स की बात किया,
और मेजर टैक्स रिफॉर्म्स जो थे वो रेशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस किया गया, रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस किया गया और सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया। ये थे हमारे टैक्स रिफॉर्म्स के पार्ट। इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स हमने देखा, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ की बात हमने किया और मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। ठीक है, इसके बाद हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स पर चर्चा हमने किया। इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स पे थे उस पर हमने डिस्कस किया। उसमें हमने जो मेजर चीज़ें जो थी, मेजर पॉइंट्स जो थे वो रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज़ और रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम था। इसके बाद प्राइवेटाइजेशन पर हमने चर्चा की जो आपके सामने है और इसमें प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से होता है, वो है एक ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप में सरकार अपनी हिस्सेदारी को प्राइवेट हैंड में बेच देती है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर। और डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, सरकार अपने ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप में मैनेजमेंट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज को सरकार उसके प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट एक्सपर्टीज़ का की हेल्प लेती है। और डिसइन्वेस्टमेंट में क्या, सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेच देती है, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। और यह यहाँ पर महारत्ना, नरोत्ना और मिनरत्ना की कहानी है, जिसमें 24 महारत्नाज है। इसके एक एग्जांपल क्या है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 24 नरोत्ना है, एक एग्जांपल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और 51 मिनीरत्नाज हैं, उसमें सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज लाइक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड 6 कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और 11 मिनी रत्ना सीपीज हैं लाइक भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ये सब सारी चीज़। अब अगला हमारा वीडियो होगा वो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, तो आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।